शिक्षण आधार योजना, बच्चों का फ्री एजुकेशन। लोग अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए उमड़ पड़े हैं। बीजापुर की एक मानव सोशल कल्चर एंड एजुकेशन संस्था कर रही है बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने का दावा। आखिर क्या है यह शिक्षण आधार योजना? क्या वाकई केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना है? क्या लोग फ्री के चक्कर में बन रहे हैं इसका शिकार? बी न्यूज नेशन ने किया इस शिक्षण आधार योजना को बेनकाब। आज हम आपको दिखाएंगे इस शिक्षण आधार योजना की क्या है हकीकत। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। आज स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है। एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ समाज सेवा के नाम पे एक संस्था शिक्षण आधार योजना का नाम पे लोगों को, उनके बच्चों को 1 साल तक प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन और फीस मुफ्त करने का झांसा देकर उनसे 160 से 200 रुपए की रकम लेकर एक आईडी कार्ड बनाकर दे रही है और ये कह रही है कि ये स्कीम केंद्र सरकार के अंदर आती है और इसका फ़ायदा उठाने के नाम पर 5000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए गए हैं और इनमें सिर्फ 160 बच्चों को सिलेक्शन करके सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है। इस पर लोग आक्रोश में आकर अपने गुस्से का इजहार करने लगे। ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ನಡು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗಳು ಅದಾರೋ ಏನಾದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು, ಅದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್, ಅದನ್ನ 70 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಕಾರ್ಡ್ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡೇ ಫಾರ್ಮೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಾ, ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಕಲ್ಲ, ಲಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನ ನೆಸಸರಿ, ಅದು ಬೇಡ। ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನಂಬರೇ ಸರಿ ಇಲ್ರಿ। ಒಂದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ನಂಬರ್ 1 ಸರಿ ಇಲ್ರಿ। ಬರ್ತಾವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಳು ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದೇವ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಳದು ಬರಲಾಗ್ಯಾವ। 100 ಮಕ್ಳು ಒಳಗಾದ್ರೂ 1 ಮಕ್ಳದಾದ್ರೂ ಸಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಾಗೈತಿ। ನಮ್ದು ಹುಡುಗಲ್ದು ಪ್ರೀ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ರಿ। 3 ಮಂದಿದ್ ಕಟ್ಟೇವ್ರಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್। हमारे पैसे हम ना वापस देंगे ना, उसे फार्म भरे 5000 बच्चा के ये भर लिए उन्हें फार्म, 100 बच्चा के भी नहीं आए हो नामा। ಇದು ನಾ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಧಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು। ಅದು ಮೇಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಮೇಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ರೀ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ। ಲಿಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿವಿ, ಅದು ಒಟ್ಟು 162 ಮಂದಿದು ಬಂದದ। ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ನಾ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಲ್ರಿ, ನಾ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಂಗ, ನಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ। ಕರೆದು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸು, ಬುಕ್ಸು, ಬಟ್ಟೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಆಯಾ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್। ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನ್ರಿ? ಹೌದಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ರೀ, ಇದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿಲ್ಲ
ತೋರಿಸ್ರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಚೀಟಿಂग ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ तब हमें इसकी इत्तला मिलने पर हम वहां पहुंचकर इस शिक्षण आधार योजना के बारे में इस योजना के कर्ता धर्ता कौशल्या मैडम और उनके पति से पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। शिक्षण आधार योजना क्या है? सर शिक्षण आधार योजना का कुछ एक स्कीम है वो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है या केंद्र सरकार की है? शिक्षण आधार स्कीम है, हमें वो शिक्षण आधार स्कीम में चीजें चालू करें हमारा शिक्षण आधार स्कीम में हमें ये चालू करें, समझो। नहीं आप इसको ये क्या है, क्या डॉक्यूमेंट क्या है आपको ये करने के लिए? अभी ये डॉक्यूमेंट भी जितना होना है तो उसमें है वो ये जब शेप मोड में क्या करो वो चालू करो। मैं कहता हूँ आप हमें जस्ट वहाँ पे शिक्षण आधार योजना करके कोई योजना नहीं है करके बोलते हैं। नहीं शिक्षण डीडी ऑफिस में की बात नहीं बोल रहा मैं, हमारा एक अभी ये संस्था है समझो एनजीओ, अभी एनजीओ में हमें शिक्षण आधार करके हमें एक स्कीम लेकर हमें चला रहे हैं। हमारे हिसाब में हमें इसका क्या है टोटल, अब वैसा भी प्रेस मीट कर को भी मैं पहला ये सो प्रेस मीट कर कुछ है मैं वैसा भी सब चालू। हमारा शौक क्या है, पब्लिक ओपिनियन ये है कि तुम्हें पैसे इनके पब्लिक के नेसेसरी लूट रहे हैं। नहीं सर वो बोल रहा हूँ मैं उनको, और मैं भी उनको लूटने का मजे क्या नहीं, ये तुम्हें सर है अभी लूट नहीं सर वो बात की बात करेंगे। एक नहीं सुनो, शिक्षण आधार योजना क्या है पहला इसका सर ये कौन केंद्र सरकार करेगा राज्य सरकार? सर ये केंद्र सरकार का स्कीम है, अभी हमें हमारी संस्था के हिसाब से हमें वो केंद्र सरकार का स्कीम है। संस्था कौन सी तुम्हारी? मानव सोसाइटी को मानव सोसाइटी ये संस्था के अंदर हमें स्कीम चला यहाँ के लोग ये स्कीम हमें चला रहे हैं। ठीक है एक मिनट, मानव सोसाइटी तुम्हारी संस्था से तुम्हें चला रहे हैं, ये खुद तुम्हें क्रिएट करें? सर ये स्कीम है ये हमें ले को चला रहे हैं। किसके पास से ले आप? अभी वो तुम्हें सेंट्रल का तुम्हारा स्कीम में देखो तुम्हें नहीं, अब हम पूरा ऑलरेडी सर्च करको चाहिए। देखो हाँ बोलो यूट्यूब में भी ये गूगल में भी देखें कोई ऐसी शिक्षण आधार योजना करके कोई स्कीम नहीं है। सुनो सर मेरी बात, डीडीपीआई पे ऑफिस के जाकर रहे हैं, वहाँ पे डीडीपीआई के अधिकारी बोलते हैं, खुद डीडीपीआई बोलते हैं कि ऐसी योजना कौन सी भी ना केंद्र सरकार से आई ना स्टेट सरकार से कोई योजना ऐसी लागू हुई करती। फिर ये अचानक आप क्या हिसाब से इसे लाए? हमें ये संस्था वाले एनजीओ वाले अभी शिक्षण आधार का स्कीम चालू बात इसके अंदर खर्चा है तुम्हें एक मिनट भाई बात करो नहीं मत तुम्हारे वास्ते हमें आए 5 मिनट चुप बैठो। अभी तुम्हें इसी मजे ज्यादा पूछना चाहते जस्ट मैडम आने वाली ही नहीं सर मैं बात बोलूं मैं सुनो सर मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना पब्लिक इंफॉर्मेशन के आसपास क्या मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ तुम्हें कौन से आधार पर तुमने क्या डीसी बोले क्या डीडीपीआई बोले क्या सीओ बोले ये योजना के तहत तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरो कर दो, कौन से तुम्हें डॉक्यूमेंट लेके ऊपर तुम्हें योजना तुम्हें पब्लिक का पैसा लेके योजना को एप्लीकेशन तुम्हें दे रहे हैं, ये आईडी बना के दे रहे हैं, क्या है तुम्हारे पास? बोले तो सर क्या बोले? अभी ये जो संस्था के तुम्हें इसमें आईडी में चला रहे हैं क्या स्कीम है, ये जो स्कीम है संस्था के आईडी में चला रहे हैं। आपने सुना किस तरह इन्होंने हमारे सवाल का जवाब ना देकर मैडम से बात करने को कहा। अब जब मैडम से बात की तो देखिए इनका जवाब क्या था। एजुकेशन पर्पस 1 साल तक उनको हमें अडॉप्ट कर लेते हैं। कैसा अडॉप्ट करते हैं? उनकी स्कूल बुक्स, बैग्स, फीस, वाटर बैग, सॉक्स, बूट, इसकी पकड़ को एक बच्चे को जो बाप खर्च करता रहे खाने पीने छोड़ को, वो सब खर्चा हमारी संस्था तरफ से देख लेने की। कौन सी संस्था तुम्हारी? मानव सोशियो कल्चरल एजुकेशन सोसाइटी। ये कितने साल से है? 18 साल से। बीजापुर की है? बीजापुर में ही जिसकी प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम किया आपने शिक्षण आधार योजना? हाँ वो तो किया फर्स्ट टाइम। केंद्र सरकार की योजना है करके बोल रहा ना फिर? हाँ वही तो केंद्र सरकार कंसल्टेड है। कैसा कंसल्टेड? तो अभी तुम्हें वहाँ एक हेड रहते हैं वहाँ के, वो हेड मुझे कंसल्टेंट रहते हैं। हमारे संस्था को उन्होंने क्या बोले थे, एक 60 रुपये का
पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये रजिस्टर फीस लो लेको उनको ऐसे एडमिशन्स कराओ रजिस्टर कराओ हम ना 5 से 6 महीने टाइम देते हैं यहाँ बीजापुर क्लवांग जल्दी नहीं हो मैं 6 महीने तक उसे जनवरी 1 कुछ मैं प्रेस मीटिंग करी हूँ एक्चुअली प्रेस मीटिंग कर को उसमें अनाउंस कर को सब पेपर में आए 4-5 चंद तक पेशा में आया हो फिर वो सब लेको मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करी धीरे धीरे थोड़े भरते हैं 3,000 जनवरी 1 से जनवरी 30 को मैं प्रेस मीटिंग करी शायद कितने एप्लीकेशन फॉर्म आप 3,668 और समथिंग ऐसा कुछ है 3,000 अबाव है यानी 4,000 तक हो गए हो गए हाँ तो आप कितने फी कितनी ले रहे हैं इसकी 160 रुपीज़ फीस ले रही एक कार्ड आता सर कई को हमें भेजें कि नहीं डॉक्यूमेंट सब करेक्ट हैं कि नहीं कर को सॉर्ट आउट कर को हम ना हाँ सुनो डॉक्यूमेंट जो भेजते हैं अभी तुम्हें समझते हैं अभी तुम्हें पेरेंट्स का इनोज खाया कर को हमें सब में भेजे सको उन्होंने सब भेजने के बाद में हम ना शफल्ड ये कार्ड नंबर्स के साथ एक कार्ड दे भेजते हैं पहला लिख को भेजते थे यहाँ के प्रोनाउंसिएशन सीधा नहीं होने में मैसेज भेजने लगे फिर मैं मैसेज उनको लिख को 70 रुपीज़ एक्चुअली उन्होंने 60 रुपीज़ कलेक्ट करते थे हमें 70 रुपीज़ कलेक्ट करें 10 रुपये तो हम एक्स्ट्रा लें ठीक है तो हमें वहाँ से कोरियर लाना सर यहाँ से कोरियर भेजना DTP कराना वो कराना हमारा भी थोड़ा खर्च होता इसलिए मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँ इनका तो आरोप है 300 से 400 तक इनका खर्चा पेरेंट्स का अरे भाई उन्हें अभी आको तो बस चार्ज कर मेरे पास दिया एजेंट को 500 दिया उन्हें वो सब मेरे पर कहीं कुछ नहीं थे मैं तो और पहला बोले तुम्हारे साथ हाँ 160 उन्होंने बोलते बोला 10 जना बोला पूछो क्या और करेस वाले को भी सिलेक्शन हुए वाले को भी बुलाता हूँ यताच नहीं होता खत्म है अभी मैं 1 तारीख से मैं सबको चक्का देने चालू करना पड़ता है वहाँ जा उनके स्कूल को बच्चे खर्च का पूरा देना तो पूरा खर्च का 1 वर्ष का देना उसे अभी ये आप अभी तुम्हारा बच्चा खर्चा कहाँ से देता है अभी हमने गवर्नमेंट देती हो अभी ये 2-3 दिन में आते हैं पैसे मैं यहाँ से बजट लेना अभी तो आप तुम जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का स्कीम जो बोल रहे हैं उसके हाँ वो सही कड़ी आपके पास डॉक्यूमेंट क्या भी ऑर्डर कॉपी है सर ऑर्डर कॉपी नहीं है बहुत ऑर्डर बहुत चीज करे सो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट उन्हें भेजे थे मुझे सर उन्होंने मेरा घर है मेरे घर से तुम्हें मालूम है वहाँ पोस्ट ऑर्डर में पोस्ट बॉक्स भी है मेरा वहाँ पर आकर मुझे डॉक्यूमेंट मिले नहीं एक बार भेजे थे नहीं मिले एक बार नहीं सुनो मैं ईमेल में भेजे मेरा रिपेयर करने वाला आया नहीं इसलिए सेफ मोड में 8 दिन वहाँ होश बैठे कंप्यूटर एक्चुअली मुझे उसकी ज़्यादा नीड है अब ये कल से आपके कंप्लेंट आ रहे हैं हमारे पास ठीक है तो हमने DDP ऑफिस में जाके इंक्वायरी DDP ऑफिस को कैसे क्या तुम नहीं सुनिए तो ये शिक्षण यानी कि DDPI के अंडरटेकिंग में आना ना एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आता स्टेट गवर्नमेंट भी आता सर एक जगह से हमने ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे ली तो उन्होंने कहा कि इस तरह की शिक्षण आधार योजना ना स्टेट सरकार से है ना केंद्र सरकार से ये पूरा धोखा है करके उनका कहना है धोखा मैं क्या धोखा देख लग जा रहा हूँ मैं सिलेक्ट हुए वाले को पेरेंट्स को बाकायदा बात कर को सबको भी बात कर को देखो सर यहाँ स्पष्ट लिखे से देखो क्या लिखे से देखो आप ही बोलिए इसमें क्या है इसमें आपने बताया है क्या इतने बच्चों को मैं लूंगी बाकी के जो भी हो जितने सिलेक्शन होते हैं कितने भी काफी हो हमारा टारगेट इतना है सब आए से पेरेंट्स को बोल को छोटे से सर इसमें क्या है नहीं हमें एडवर्टाइजमेंट है सर एडवर्टाइजमेंट है हर कोई टीवी का एडवर्टाइजमेंट करते नहीं सर आप बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस है आपका ये पार्ट ऑफ बिजनेस है समझो तो सर एक NGO चलाना भी बिजनेस है हजारों लाखों करोड़ नहीं वो समाज से फुकट नहीं करते नहीं है अभी तुम्हारा ये टारगेट रहता अभी तुम्हें समझो तुम नए टारगेट देते एक 10,000 बच्चे करे तो तुम्हारे बीजा आपको एक 500 बच्चों को हमें एजुकेशन पर जुटा लेते वो दिए ना जो टारगेट आपको दिए उसकी एक कॉपी दिखाओ हमको बस मैं दिखा तो सर मेरे लिए वो कंप्यूटर में रहा थोड़ा सा बोलो नहीं वो 3 दिन से वही वो छोकरे को ढूंढ रहा अभी 1 मिनट नहीं मेरा सेफ मोड छता हमारे बच्चे का बोलिए ना मैं करता हूं ना बोलिए क्या मानना सेफ मोड में आ रहा हो नहीं मेरे ईमेल में है ना मेरे ईमेल में सभी आई हूँ डॉक्यूमेंट्स आपका ईमेल बोलो ईमेल में काटेंगे शिक्षण आधार नहीं मेरे ईमेल में एग्जैक्टली वो सेव करके रखी स्विचिंग कॉपी सब भी मैं क्या बोल रहा हूँ सर तुम्हें मुझे इतना ज्यादा ये मैं पब्लिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे टाइम दे सर मैं इससे बात करता हूँ क्या है मैम ये पब्लिक इशू है हम नहीं पूछते थे आपके घर में पब्लिक उधर आपको गाली दे रही है देने दो अभी मेरे पास आपको देने दो ना गाली मेरे पास मैं पूछती हूँ ना पब्लिक को दीजिए पब्लिक इशू है इसलिए मैं वही पब्लिक आकर मेरे पास पूछो मैं पूछ रहा हूँ आपको
आपने ये ऐड दिया है, क्या बोलते हैं आप, यूट्यूब के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, देख सकते हो, आपका वेबसाइट नहीं है, आप वेबसाइट एक बड़ी निकालो संस्था सर। की अध्यक्ष हैं करके बोलते हैं, एक वेबसाइट तक आपका नहीं है क्रिएट किया हुआ। सर आपको निकालो, वेबसाइट निकालो, नहीं आपने वेबसाइट निकालो, शिक्षण आधार भाई मानव सोसाइटी करके निकालो application सर। में क्या है बताइए, आपने जो हैंडबिल बनाया है सर, इस हैंडबिल में क्या है? नहीं है शिक्षण आधार पता है, सोसाइटी, आपके 2 हैंडबिल है मेरे पास। ये लिखो आता देखो, वेबसाइट निकालो आप, क्यों ऐसा कर रहे हो? कहाँ है क्या वेबसाइट करके? ये आपने वेबसाइट नाम करके दिया है मैम। नहीं सर, और यहाँ निकालो, पे- यूट्यूब में आ जाता। नहीं, सुनिए, यहाँ पे यूट्यूब देखो, यूट्यूब पर वेबसाइट नहीं है, सर मैं रिन्यूअल यूट्यूब कराने, एक चैनल है। सर मैं रिन्यूअल कराने का है। आपने देखा, जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से आपको दिया गया ऑर्डर कॉपी दिखाने को कहा तो किस तरह अल्फाजों का गोलमाल करने लगे। फिर जब हम नहीं माने तो आखिर इस शिक्षण आधार योजना का सच अपने ही जबान से कह दिया कि किस तरह पैसे कमाने के चक्कर में एजुकेशन स्कीम का प्लान करके जनता को लूटा जा रहा है। पैसे खाई कर रहे थे कि नहीं? माझे पैसे खाने रस्ते बहुत है, माझे पैसे खाने रस्ते बहुत है, माझे पैसे खाने रस्ते बहुत है, मैं पैसे खाने नहीं क्या रस्ते है का। मैं क्लियर करो, हमें क्या है वो संदेश देने वाले तुम्हारे। अब आइन नाम में फोन आता मैं हमारे हिसाब से हमना क्या है मेन है ये तुम्हारा देखो सर, अधिकार कौन दिया है तब बोल छोड़ो। सर ये एक योजना बना है एजुकेशन, ये कौन बने सच योजना? बोलता हूँ, ये सब बंद करो, बंद करो तुम्हें, ये सब बंद करो, बंद करो तुम्हें, ये सब बंद करो, बंद करो तुम बंद करो। मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनल बाद मेरा क्या इंटरनेट है जी, मैं बोल आइस वाले कौन भी नहीं क्या बोल रहा। अभी आइस वाले 2 जन ठहरे, मैं देख गई चेहरे उनके, उन्होंने क्या भी नहीं बोलते, नहीं यार नहीं चिल्लाते। अरे भाई तुम्हें एक कप चाय नाश्ता की कीमत नहीं है। एक पैक दारू पे तो खत्म होते पैसे, एक पैक दारू पे तो खत्म होते पैसे, एक पैक दारू पे तो खत्म होते पैसे। लेकिन ना इन्हों करना कर को बोल को इनको कुछ लोग नहीं है। मेरे फीडबैक नहीं होना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए एक बच्चे के लेते थे। सुनो नहीं सुनो, ऐसा नहीं है। जब बिजनेस के तरफ बात करें तो मैं बता को देखो सुनना है कि नहीं। एक लाख को तो सच बोलना तो जिंदगी में, मर्द को तो बोलना, बॉयफ्रेंड को तो बोलना। अभी मेरे दोनों भी, मेरा पति जो सब बोलते हुए अक्सर उनको नहीं मालूम होता। ये सो सिंपल, मैं जवाब नहीं दे सकता तुम्हारी बात का, मैडम आने करके बोले। इतने लोग हैं, इतने पैसा आई मेरे पास। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरा बिजनेस सीक्रेट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं हमें क्या वो ये तुम्हारा सीक्रेट तो क्या भी नहीं करते हैं। नहीं मुझे क्या करने वाली पब्लिक ओपिनियन 1000 रहती ना, छोड़ो जी पब्लिक का। आज 162 बच्चे तुम्हें सिलेक्ट करे। अब एक स्कूल को मिनिमम तुम्हें क्या बात करें, क्या भी नहीं बात कर सर। मैं सीधा जाता हूँ, कल 1 तारीख से जाने का चालू करता हूँ, सीधा जाता हूँ, चेक देता हूँ। अभी मैं कल परसों से 2 दिन में मैं पेरेंट्स को बुला के मीटिंग करता हूँ। तभी मैं क्या बोले आरटीई के अंदर भी हमें करेगा तो बोले आरटीए के अंदर मैं करा को दूँ लोगों को, मैं मेरी पहचान के। अब 162 में ये पूरे आरटीई नहीं आरटीए नहीं, ये सब भी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। आरटीए को संबंध क्या भी संबंध आरटीए के मैं स्टूडेंट्स को करा को दूँ, ये तो मेरी पहुंच है वहाँ पर, मैं करा को दूँ। कम से कम 25-30 लोग हैं यहाँ सर नमदन आरटी है कि मेरे स्कूल का स्टाफ बोलना नहीं, आप खत्म हो तो नहीं लिस्ट लगाए नहीं भी, तुम्हें बोलना नहीं। उन्हें मेरा क्लोज फ्रेंड है, 10 पैसे नहीं से कर देता। अब ये तुम्हारे सब से 162 आरटीई में नहीं है, कुछ भी नहीं। इनको मैं इनको पूरे फैसिलिटी देने वाली हूँ, पैसे देखो एडमिशन मैं खुद पैसे देने वाली हूँ। चलो तुम्हारा मेरा मान के चलिए। चले क्या एक बच्चे को क्या फी देते हैं अंदाजा तो? ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಯಾಪ್ स्कूल की फीस बोलते हैं 8,000 से 10,000 होता है, 2,000 एक्स्ट्रा मीन्स उन्हें बैग बुक्स वगैरह, ओके। उसे प्लस 1,000 रुपीज़ पकड़ो ठीक है, तब भी उसका वाटर बॉग आता, उसके सॉक्सेस आते हैं, उसका यूनिफॉर्म आता है। एक कम से कम 11 से 12,000 रुपये एक बच्चे को। दूसरे स्कूलों में तो ज़्यादा है, तो अब बहुत से स्कूलों का हुआ तो नहीं, कितने स्कूलों को करें तो? मैं देखो नील कमल है यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर है, सब 12 से 14,000 रुपये हैं। और एक सुनो तो, और सुनो उर्दू स्कूल के हैं वहाँ 8,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000। गवर्नमेंट स्कूल का भी 4 बच्चे हैं, 2,000। ठीक है, तो मुझे पब्लिसिटी होना, मेरे पास अभी मैं यहाँ 10 पैसे नहीं कमाई हूँ, इतना टेंशन ढो ली हूँ मैं, अभी ढो लेता हूँ मैं, और अगले साल इससे डबल करता हूँ मैं। एज अ फ्रेंड बात करें, मैं फ्रेंड 162 को 12,000 रुपए से 12,000 नहीं है तो जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी एक 20 बच्चे 12,000 के ओपन है,
20 बच्चे 12,000 के, एक 20 बच्चे 16,000 के। सो कॉस्ट ऑन 3 लाख रुपीज़ होता उसका। एक 30 बच्चे कम से कम 3 से 3,500 रुपये ओनली उन गवर्नमेंट हैं, उनको ओनली यूनिफॉर्म्स, बैग्स, बुक्स, कंपास नहीं वो देती नहीं मैं, ऐसा लेख देने का नहीं, ऑलरेडी रहते हैं। देखो पेरेंट्स आज के ज़माने में कैसा कर रहे हैं, ऑलरेडी रहते हैं उनके पास, वो हमें उनको चेक इशू कर सकते हैं पैसा। कैसा फॉर एग्जांपल 300 रुपये की बैग है, 40-50 रुपये के 2 सॉक्स हैं, 300 600 रुपये शूज़ हैं, 50 रुपये कंपास, ये ऐसा सभी ये मिला को। और ऐसा यूज़ एंड थ्रो 12 पहनना, एक सस्पेंसिव बॉक्स का वो बॉक्स, वो कितने होते हैं मैं अभी उसका एक रेट नहीं कर रही हूँ, ऐसा सब मिल के 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने का। और शूज़ ये स्कूल क्या ट्यूशन और ऑटो वैन वो नहीं देती मैं, तो तेरी मर्जी तो पेरेंट छोड़ को था क्यों तो लेके जा, तेरी मर्जी ऐसा में एक ठंडा पन ला भाई। हाँ निस्ता ये इसके प्राइवेट स्कूल के बच्चों के 2,40,000 होते हैं, और गवर्नमेंट इन बिटवीन सुनो तो इन बिटवीन वो क्या 30 बच्चे हैं, उनका है सो 90,000 रुपये खर्चा होता, 3 लाख रुपए इनका खर्चा होता। इसमें मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ मैं एक्चुअली इन्होंने नहीं रेस्ट 160 रुपये का नहीं है, पूरे हमारे सैंक्शन हुए 25,000 रुपये मैडम की। अब वो तुम्हें कैसा आप देखो आप नहीं वैसा कैसा नहीं है। अभी देखो मैं तो तुमने हर चीज तो सभी बोली जाते हैं नहीं, ये चार्ज नहीं तुम्हारे पीछे लगे सुजी। मैं किसी एजुकेटेड लोगों को समझाई तो आई तो एक घर के 28 लोग आई, मैं तुमने पीछा दिन का फोन नंबर देता हूँ 28 उनके किसका नहीं चॉइस करें क्यों तो हाई चॉइस लेंगे वो तुम्हारी बड़ी नहीं। ये जो आप जो एप्लीकेशन इनको दिए इसमें चुप तुम्हें कनिष्ठ इतने बच्चे हैं, इसमें सिलेक्शन हुआ तो तुम ना लेते हैं, नहीं तो नहीं करते। हमें वैसा बोले थे सर, क्या बोले मैं इसमें नहीं डाली मानती, लेकिन हर एक पेरेंट्स को जो भी आते थे मैं बोले सो सिलेक्शन कैसा करते हैं तुम्हें कहते कंप्यूटर सिलेक्शन करते हैं, कौन करते हैं तो ऊपर से करते हैं 3 डायलॉग है बाद में से नहीं हुआ तो कर कोनो मजे पूछे नहीं, पैसे देते हैं क्या कर उन्होंने पूछे नहीं, मैं देता हूँ कर उनको बोले नहीं। किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी किसी बुलाक बोलते हैं पूछो मैं इनको एक तो मार कुछ करता हूँ, वो भी उन्हें रिकॉर्ड कर पेपर में बा मैं देखता हूँ बाद में एकला भी मैं का लाल मुझे बोलूँगी उन्हें पैसे वापस देता हूँ करके तो मेरा सर उनका जूता देता हूँ, नहीं तो उनका सर मेरा जूता। एकला भी मैं का लाल मुझे बोलूँगी उन्हें पैसे वापस देता हूँ करके तो मेरा सर उनका जूता देता हूँ, नहीं तो उनका सर मेरा जूता। नहीं उनको ऐसा नहीं क्लियर कट मैं बोले सो ये कौन है तो नहीं क्या कौन भरा लगे पूछो तो मेरे सामने बैठा पूछो साहब पीछे लाख बोलते जी तुम ना, मैं नहीं सुनती किसके बाप की, मेरे सामने बोला पूछेंगे। चलो अब क्लियर कट में बोले ऑनलाइन में सिलेक्शन होते हैं, अगर इसमें तुम्हारा बच्चा सिलेक्शन हो भी सकता नहीं हो सकता करके बोले तो तुम्हारे बच्चे तक दीजिए, नहीं तो नहीं ऐसा बोले नहीं वैसा सच बोले खुदा कसम से सच बोले, मुझे क्या जरूरत नहीं, कल भी मैं प्रूफ रख दी उनको कीजिए बोला नहीं तो जाकर सर को। हम इस शिक्षण आधार योजना के दफ्तर आने से पहले सरकारी शिक्षण अधिकारियों से मिलकर इस स्कीम की जानकारी ली तो उनका क्या कहना था सुनिए। तो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार स्कीम ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ 80 105 ಇದ್ರದಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು 10 ಪೈಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು। ಯಾವ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅದು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರ हमने इस शिक्षण आधार योजना का सच आपके सामने रखा कि किस तरह जनता को एक प्लान के तहत उन्हीं की दी हुई रकम को लेकर उनमें से कुछ बच्चों को चुनकर उन बच्चों का एडमिशन करके बाकी रकम को गोलमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार का नाम लेकर एजुकेशन के नाम पे जनता को लूटने का ये एक नया तरीका बीजापुर में देखने को मिला है। अब जनता अपने रकम वापस देने की मांग कर रही है, मगर उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। अब देखना यह है क्या कानून के रक्षक ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करके जनता की रकम वापस दिलाएंगे या नहीं। इस तरह के स्कीम तो आते ही रहेंगे, मगर आप कब समझोगे
मैं आपसे ही कह रहा हूं, जो बिना कुछ छानबीन करे ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं, कुछ भी करने से पहले उसकी सही जांच करके आगे कदम बढ़ाएं।